Good morning, dear students. Welcome back to the chemistry class. In the last class, we have discussed about the quantitative aspects of electrolysis and Faraday's first law, second law. Statement. What is the statement? First law का statement क्या है? The mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity supplied. Second law क्या है? If same quantity of electricity is passed through two or more electrolytic solution, in that case, the mass of substance deposited or liberated is proportional to their equivalent weight. In simple word, electrode reactions कितना हो रहे हैं वहां पर? The amount of substance deposited or liberated. वो किसके ऊपर डिपेंड है? हम जितना करंट पास करते हैं उतना डिपॉजिटेड होते हैं वहां पर, उसके ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या है? अगर सेम क्वांटिटी करंट पास किया तो टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पास किया तो वहां पर कितना डिपॉजिट होते हैं, वो उसका इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंडेंट है. वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ we'll move to its application. Faraday's first law and second law. First law. Mathematical statement क्या है यहाँ पर? First law का statement, W is proportional to Q, or W is equals to Z into Q, where Z is proportionality constant known as electrochemical equivalent. In the last class we have discussed. But Q is equal to क्या है यहाँ पर? Q का फार्मूला क्या है? But Q is equals to I into T. Q is equals to I into T. Therefore we can write W is equals to Z into I into T. Current into time. तो ये फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट. Whereas सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड लॉ which states that mass of substance deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weights E1 by E2. ये second law का statement था. But in modern terminologies we are not using the equivalent terms, but in place of that we are using the number of moles. Number of moles, N1, N2 we can use number of moles with the mass of substance deposited in moles. Moles of substance deposited or liberated is proportional to number of moles of electrons in water. Now, let us solve some problems on this. Take a first problem. एक first problem देखेंगे यहाँ पर. Take one problem. 1.5 ampere current, or else first लगे ऊपर देखिए. Mass of copper deposited when 1.5 ampere current passed through copper sulfate solution for 10 minutes. This is the first problem. क्या है? We have 1.5 ampere capacity of current का capacity 1.5 ampere. This much of current passing through the copper sulfate solution for 10 minutes. क्या है? Calculate the mass of copper deposited when 1.5 ampere current is passed through copper sulfate solution for 10 minutes. For 10 minutes. ये क्वेश्चन है आपका. तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, where is that CaSO4? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कर दूंगा. इलेक्ट्रिसिटी पास किया. कितना? 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड. हाउ मच टाइम? फॉर 10 मिनट्स. तो कितना डिपॉजिट हुआ वहां पर, यह फाइंड आउट करना है. तो एज वी हैव डिस्कस्ड सम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स इन द लास्ट क्लास. तो यहां पर देखिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मींस व्हाट? यहां पर क्या है? कॉपर +2 ions are there. So it containing
Cu+2 ions are present. तो ये Cu+2 ions रिडक्शन होना चाहिए. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये कॉपर आयन उसके ऊपर डिपॉजिट हो गए. कैथोड रिएक्शन. तो कैथोड रिएक्शन क्या हुआ? इट टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गिव्स राइज टू Cu. ये रिएक्शन है आपको. तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ये जो केमिकल इक्वेशन है, दिस गिव्स ए इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स स्टोइकियोमेट्री. क्या है? 2 moles of electrons are we can call 2 farad. 2 farad means in terms of charge में, which gives rise to 1 mole of copper. 1 mole of copper deposit हो गया. कॉपर का एटॉमिक मास कितना है? 63.5 ग्राम is deposited from this much of charge. अब हम कितना पास कर रहे हैं वो चाहिए. करेक्ट ना? तो 2 farad. 1 farad का वैल्यू क्या है? 1 farad का वैल्यू क्या है? 1 farad is nothing but 96500 coulombs. ये 1 farad का वैल्यू है. तो हमने यहां पर कितना यूज कर रहे हैं? 2 farad. So according to this equation, 2 into 96500 coulombs, which gives rise to 63.5 grams. अगर ये सोल्यूशन थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इफ वी पास 2 into 96500 193,000, कैलकुलेशन देखिए, क्योंकि हम अगर रेगुलर यूज किया तो आपको भी याद रहता है ये 2 into 193,000 coulombs. If we pass 193,000 coulombs of current, then 63.5 gram is deposited. अब मैं ये प्रॉब्लम में कितना करंट पास कर रहा हूं? यहां पर 1.5 एम्पियर करंट है, वो 10 मिनट्स तक पास कर रहा हूं. तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट Q. तो अब यहां पर Q कितना है? Q is equals to I into T. I 1.5 एम्पियर है, टाइम 10 मिनट्स. 10 मिनट्स, ये 1.5 एम्पियर इंटू 10 मिनट्स है. मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कीजिए. 10 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स. 60 सेकंड 600 into 1.5 900 coulombs. So I am passing only 900 coulombs. तो 900 coulomb पास किया तो कितना डिपॉजिट हुआ? तो देखिए यहां पर, यहां तक तो आ गया. नाउ वी आर पासिंग ओनली 900 coulombs. सो इसको कितना डिपॉजिट होगा? हो गया कैलकुलेशन. क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, सॉल्व कीजिए. क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 900 into 63.5 divided by 193,000. 193,000. That gives us to कितना होते हैं? देखिए 2 zeros get cancels. 9 into this divided by 1930. So you get the final answer. ये आपका आंसर. कैलकुलेट करके देखिए आंसर कितना आता है. इसका आंसर है 0.296. 0.296. Verify this. 0.296 gram of copper is deposited by passing 1.5 ampere of current through copper sulfate for 10 minutes. So this is the amount of copper deposited on the cathode. वेरीफाई कीजिए. कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. 2 zeros कैंसिल होगा. 63.5 into 9 डिवाइड बाय 1930. तो योर आंसर इज, आपको उतना आना चाहिए. अगर नहीं आया तो चेक कीजिए आता है या नहीं. यहाँ पर बुक में दिया है 0.296 ग्राम. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम. टेक सेकंड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 2. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू गेट 10 gram of aluminium from molten aluminium oxide. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. यहां पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to deposit 10 gram of aluminium from molten aluminium oxide Al2O3.
10 ग्राम अल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है फ्रॉम Al2O3, मोल्टन अल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपको। सो इन दिस मोल्टन अल्यूमिनियम ऑक्साइड में इट कंटाइन Al+3 आयन, अल्यूमिनियम +3 आयन है, डिपोजिशन करना है। डिपोजिशन टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोड बोले तो रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन का रिएक्शंस लिखिए। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? अल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू अल्यूमिनियम, ये रिएक्शन करेक्ट है। ओके, सो 3 moles of electrons required to deposit 1 mole of aluminum, correct? According to balance equation, 3 moles of electrons are required to deposit 1 mole of aluminum. अब क्वेश्चन क्या है? Number of moles of electron required to deposit 10 ग्राम। 10 ग्राम डिपोजिशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल के क्वेश्चन पूछता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस अल्यूमिनियम का मास कितना है? 27. So here 27 gram of aluminum is deposited from, अगर 27 आपको चाहिए तो 3 moles of electron are required. So 3 moles of electrons are required to deposit 27 gram of aluminum. Now how much I need? Only I require 10 gram. 10 ग्राम के लिए कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 10? 27 को 3 मोल चाहिए तो 10 को कितना चाहिए? ऐसा है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 into 3 divided by 27. So here 3 into 10 by 27, that is equals to 30 by 27. 30 by 27. 9 by 10. 9 by 10 is nothing but 1.11 moles of electrons is required to deposit 10 gram of aluminum. Correct है या wrong है? देखिए calculations 1.11. Is it right or wrong? Once you check, its answer is yes, 1.11 moles. 1.11 moles. So this is your question. Now take the third problem. Third numerical, third one. How many moles of electrons are given by, take the question, how many moles of electron, how many moles of electrons are given by, first one, given by 8960 coulombs, and B 1.5 ampere current passed, 1.5 ampere current passed for 30 seconds, for 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. ये क्वेश्चन है आपका थर्ड का। ओके, देखिए यहां पर राइट सोल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय 8960 कूलम्स। आपको तो स्टैंडर्ड पता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दैट 1 farad is nothing but how much coulombs? 1 farad, as we know that 1 farad, that is nothing but 1 electron, 1 mole of electron. This indicates 1 mole of electron का जितना चार्ज है उसको 1 farad बोल रहे हैं, एंड इसका वैल्यू है चार्ज ऑन 1 mole of electrons is equals to 96500 coulombs. 96487 है, approximately we can take 96500 coulombs. 96500 coulombs करंट रहा तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? 965, आई एम राइटिंग रिवर्स, थोड़ा यहां पर चेंज करूं मैं। 96500 coulombs, which is nothing but 1 mole of electron.
क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय 8960 कूलम। तो 8960 कूलम्स को कितना मोल्स है, ये क्वेश्चन है आपका। आगे आंसर क्रिस्क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8960 कूलम्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं, 896 डिवाइडेड बाय 9650। चेक आउट द आंसर, राइट द आंसर। राइट आंसर क्या है, 0.0928, 0.0928। सर ऐसा प्रॉब्लम कैसा करना, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको ही पता होगा, कैसा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग रहना चाहिए। सर आप कैसा पढ़ाते हैं, दिस इज द मेथड्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। तो उसके लिए कुछ आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस किया तो ये ऐसा मैथमेटिकल पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसा प्रैक्टिस आपका ज्यादा होता है ऐसा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आपको इजी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर फर्स्ट का, ये उसमें ये का हो गया। नेक्स्ट बी का, बी में क्या है, 1.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 30 सेकेंड्स। तो 1.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 30 सेकेंड्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दैट। तो वहां पर अभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू, Q कितना है नहीं दिया वहां पर, Q इज इक्वल टू I इंटू T आपको पता है। तो फर्स्ट Q फाइंड आउट कीजिए, I कितना है 1.5 एम्पियर इंटू 30 सेकेंड्स, 1.5 एम्पियर इंटू 30 सेकेंड, 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 0.5 15, सो कितना होगा 45 एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इज नथिंग बट कूलम्स, Q इज इक्वल टू 45 कूलम्स है। तो अगेन सेम डाटा है, 96 we know that 96500 coulombs is nothing but 1 molar, which gives rise to 1 mole of electrons. Then 45 coulombs gives rise to how many moles of electron is the question. So this gives rise to crisscross multiplication, 45 by 96500 moles of electrons are given by the current 1.5 ampere of current passed for 30 seconds. तो इसका आंसर कितना हुआ, 45 by 96500 और 45 by 96.5 अप्रोक्सीमेटली। अगर ये 96 है ना, ये 96.5 दिस इज 965 और 96.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +3, ऐसा कुछ डेसिमल पॉइंट चेंज करके कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट में आते हैं आपको +3 को -10 पावर -3 में ऐसा है। तो आंसर कितना है, हियर इस आंसर इज 4.66 इंटू 10 टू द पावर -4। वेरीफाई द आंसर, कैलकुलेशन एक बार करके देखिए, 4.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इज द आंसर। आंसर चेक कीजिए यहाँ पर 45 by 96500, जो आंसर आएगा वो करेक्ट है आपका। दिस इज द थर्ड न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the next problem is, check down the next problem, calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium ion when a current of 1.25 ampere flows through the solution of chromium sulfate and its molar mass is 52. क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, take the questions next 4 problem. Calculate how long it will take, टाइम पूछ रहे हैं यहाँ पर, calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium ion, 1 gram of chromium from CrSO4 taken thrice chromium sulfate solution.
chromium sulfate solution when a current of 1.2, that is with 1.25 ampere current. Atomic mass of chromium is 52. chromium का मास दिया है 52. क्वेश्चन क्या है? Calculate how long it will take to deposit 1 gram of chromium from chromium sulfate solution with 1.5 ampere current. तो यहां पर है, आपको पता है करंट दिया है, टाइम नहीं दिया. 1 gram is deposited from chromium sulfate. तो डिपोजिशन ऑफ क्रोमियम है फ्रॉम क्रोमियम सल्फेट. क्रोमियम सल्फेट बोले तो वहां पर आयन्स कौन सा है? क्रोमियम आयन. क्रोमियम आयन का चार्ज कितना है? +3. तो हियर फर्स्ट राइट ऑन द रिएक्शन. Chromium +3 ions are there. To deposit chromium ion, how many electrons are required? 3 electrons. Because +3, so it requires 3 electrons. 3 electron अगर गेन किया तो एक chromium डिपॉजिट हुआ. हो गया रिएक्शन. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 3 moles of electrons required to deposit 1 mole of chromium. That means 3 moles, 3 into 96500 coulombs. Shall I write directly? क्योंकि 1 mole of electron is nothing but 1 farad. 1 farad बोले तो 96500. तो यहां पर 3 moles है, so 3 into farad, 3 farad. So अगर इतना करंट पास किया तो इतना coulombs, 3 into 96500 coulombs पास किया तो कितना डिपॉजिट होगा? आपको 52 grams of chromium is deposited. 52 gram because 1 mole. Now हमारा प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल्स में क्या पूछा है? 1 gram of chromium is deposited. 1 gram डिपॉजिट करने के लिए तो यहाँ पर 52 है, लेकिन मुझे चाहिए ओनली 1 gram of chromium. तो ये 1 gram of chromium के लिए यहाँ पर कितना चाहिए? How much current we need to pass to get 1 gram of chromium? So that is कितना चाहिए? 1 into this divided by criss cross multiplication. 3 into 96500 into 1 divided by 52. That is equals to, we'll get some answer. फर्स्ट स्टेप में हो गया. ये आपको क्या मिला? Q का वैल्यूज मिला यहाँ पर. तो कितना आएगा आंसर? यहाँ पर आंसर कितना आया देखिए, कैलकुलेशंस. 3 into 96500 divided by 52. Here you will get 5567.3 coulombs. तो आपको यहाँ पर ये कितना चार्ज आया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम पूछा है आपको. विथ 1.2 एम्पियर करंट. सो दैट इज नाउ यू गॉट द Q का वैल्यूज आपको पता चला है. Q इज इक्वल्स टू I इंटू T है. Q का वैल्यूज कितना है? 5567.3. that is equals to current 1.25 ampere into time. तो आ गया आपका आंसर. टाइम इज इक्वल्स टू 5567.3 divided by 1.25. This is your answer. इन सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में आ गया आंसर. कितना आता है आंसर यहाँ पर? 5567.3. 4453. 4453.8 सेकेंड्स आ गया. यू कैन कन्वर्ट इनटू मिनट्स आर आवर्स. डिवाइड बाय 60 किया तो मिनट्स में आ जाएगा. डिवाइड बाय 3600 किया तो आवर्स में आ जाएगा. सो इफ इट इज डिवाइड बाय 3600 विल गेट इन आवर्स. अगर आवर्स में होना है तो इफ यू रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में हाउ लॉन्ग, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन में मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स या डेज ऐसा दिया तो डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं. अगर आवर्स में पूछा है तो इसका आंसर है 1.24 आवर्स. चेक इट. डिवाइड बाय 3600 करके देखिए इतना आता है या नहीं. आंसर तो 1.24 आवर्स दिया है यहाँ पर. चलो ठीक है, तो ये आपका होगा. नेक्स्ट, टेक 1 or 2 होमवर्क ऑन दिस.
नेक्स्ट प्रॉब्लम, how many coulombs are required to deposit 40.5 gram of aluminum? Similar questions already we have solved one problem, such type of problems. कौन सा प्रॉब्लम हुआ था प्रीवियसली? अल्यूमिनियम का एक प्रॉब्लम शायद हुआ था. देखिए, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 grams of aluminum, 40.5 gram of aluminum from aluminium sulfate solution, aluminium sulfate solution है. अल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन से आपको अल्यूमिनियम डिपोजिशन करना है. तो क्वेश्चन डायरेक्टली हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए. नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद कूलम्स को कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा. सेकेंड, वन मोर प्रॉब्लम, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिड्यूस, हाउ मच टाइम does it take to reduce Fe+3 ion into यहां पर कितना है, how much takes to reduce 3 moles of Fe+3 ion. कितना दिया है यहां पर? 3 moles of Fe+3 ions into Fe+2 ions, Fe+2 ions with 2 ampere current, or by using 2 ampere current. तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाइए. सिंपल क्वेश्चन है यहां पर, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व, बिकॉज हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ अल्यूमिनियम फ्रॉम अल्यूमिनियम सल्फेट. सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? टाइम पूछा है. हाउ मच टाइम डज इट टेक to reduce 3 moles of Fe+3 into Fe+2 ions with 2 ampere current. कर सकते हैं ना? यस, ओके. इतना ही नहीं, इसके ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव, कौन से भी एक ऑब्जेक्टिव बुक ओपन कीजिए, उसमें फैराडेज लॉ हेडिंग में इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए. इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss about some of the numericals on Faraday's second law also. सेकेंड लॉ के ऊपर भी प्रॉब्लम चेक करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर ज्यादा क्वेश्चन प्रिफर्ड है आपको. आप कौन से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकल के देखिए, ये पार्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ये पार्ट का क्वेश्चंस आपको मिलेगा वहां पर. थैंक यू. नोट द सॉल्यूशन एंड टेक दिस क्वेश्चंस, सॉल्व करो.